Hello and welcome students. I hope you're all doing great. So we are back with our next class of Indian Contract Act, and I hope all the previous classes that you have been with me, you have all enjoyed it a lot, and all the concepts that I already discussed with you or explained you is very much clear to you. I hope so. Okay. So today we'll be discussing our next topic, and this is coming to an end, or you can say coming to the conclusion of this chapter, Indian Contract Act. So we have two of our topics pending, that is communication of offer and acceptance as well as revocation of offer and acceptance. These are very important concepts of this chapter. All the things that we have discussed previously are important, but this is the most important part of this chapter. So I hope you all will take keen interest in this and try to understand each technicalities associated with this topic. Okay, when we talk about communication, what do you actually mean by communication? See, communication means whenever there is exchange of thoughts, ideas, process between two or more parties, that is known as communication. That means if one party says something to the other party and the other party understands what first party has said, it is said to be communication. For example, if I say something to you and in return you do not understand what I've actually meant by the words, what I meant to explain you won't understand those things. That is, if I explain you the chapter and if you don't understand whatever the chapter is explained to you, then my communication to you has failed. In order to make effective communication, or the essence of communication says, whatever is transferred or communicated by one party to the other party, it is very much important that the other party understands whatever has been conveyed or whatever has been transferred to him. For example, let us say Mr. A and Mr. B. If Mr. A sends a letter to Mr. B in English, and if Mr. B is illiterate, and he cannot understand whatever has been written in the letter by Mr. A, do you think the communication is effective? No, the communication is not effective, because since Mr. B is illiterate and he cannot understand English, so whatever letter has been given or whatever letter has been communicated by Mr. A to Mr. B has turned out to be ineffective. As a result, there is no communication of thoughts, ideas and process between A and B. भाई कम्युनिकेशन तो तब होगा ना जब मिस्टर बी को वो चीज़ समझ आएगी. यहाँ तो मिस्टर बी को वो चीज़ समझ ही नहीं आई है जो मिस्टर ए उनको बताना चाहते थे. तो क्या कम्युनिकेशन हुआ है इनके बीच में? नहीं, इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है. ठीक है. वैसे ही जब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की, तो इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कब ऑफर कम्युनिकेट होता है, कब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होता है. ये दोनों बातें ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एज अ लेमैन अगर हम समझें, एज अ लेमैन, आई एम अगेन रिपीटिंग, तो ऑफर कम्युनिकेट कब होगा? जब आपकी तरफ से निकल गया तो यू विल थिंक कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया है. एंड एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब होगा? जब सामने वाली पार्टी ये सोचेगी कि हमारी तरफ से वो चीज़ निकल गई है, तब एक्सेप्टेंस वो कम्युनिकेट मानेंगे. बट एक्चुअल अगर हम लॉ के टर्म्स में बात करें तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस. आई होप इससे पहले जो हम ऑफर और एक्सेप्टेंस का मीनिंग पढ़ चुके हैं वो आप सबको क्लियर है कि एक्चुअली ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होता है. मैं एक बार फिर आपके लिए रिपीट कर देती हूँ सो दैट अगर आप भूल गए हों तो आपके टॉपिक जो है वो रिव्यू हो जाए, ताकि आपको ये टॉपिक समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट ऑफर. देखो ऑफर क्या होता है? जब भी कोई एक पार्टी, ठीक है, वुड वॉन्ट टू गिव समथिंग और वुड लाइक टू हैव समथिंग. सिंपल बात में कहें, अगर मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सामने वाला पर्सन मुझे दे, या मैं किसी सामने वाले पर्सन को कोई अपनी चीज़ या बिलोंगिंग प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली आई वुड आस्क द अदर पर्सन. ये आस्किंग क्या है, इसको हम लॉ के टर्म्स में या टर्मिनोलॉजीज में हम इसे ऑफर कह रहे हैं. ठीक है. when I want to give certain thing to the other party or I expect certain thing from other party, that is an offer.
when I'm making an offer, I would definitely want the other party to do an act. To do an act मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि I would like to buy your car for rupees 25 lakh rupees. That means I am offering the other party कि मैं आपकी कार 25 लाख में खरीदना चाहती हूँ. तो I want the other party to give his consent to do an act in the sense to deliver his car to me for rupees 25 lakh rupees. ठीक है. तो if I want the other party to do certain act for me and at the same time if I want the other party not to do a particular thing, for example if I say I will give you rupees 10 lakh rupees, I will give you 10 lakh rupees if you do not go out to a trade fair. Now here I want the other party not to do a particular act. I am offering him 10 lakh rupees for what? I am offering him 10 lakh rupees कि आप अगर ट्रेड में नहीं जाएंगे, ट्रेड फेयर में नहीं जाएंगे तो मैं आपको उसके बदले में 10 लाख रुपए दूंगी. तो फर्स्ट एग्जाम्पल वॉज आई एम ऑफरिंग द अदर पार्टी टू डू एन एक्ट. Second example was I'm offering the other party not to do a particular act. So when I ask the party to do an act or to abstain from doing an act, that is both, and the other party if he agrees to whatever I have said has given his acceptance. I hope it is clear. Now when we're talking about communication of offer and acceptance, first of all the most important thing is whenever the parties are in direct contact or we can say are face to face are communicating. ठीक है. जैसे अगर अभी मैं आपके सामने हूँ लेकिन आप मेरे सामने जो हैं फॉर टाइम बिंग नहीं हैं, ठीक है, तो आई वुड नॉट अज्यूम कि मेरी कही गई बात आप तक इंस्टेंटली पहुँच गई है. आई वुड नॉट अज्यूम, डेफिनेटली नॉट अज्यूम, बिकॉज मेरी कही गई बात आप तक अभी क्लियरली नहीं पहुँची है. इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू वर in front of me, you were just in direct contact with me, then whatever I have said would definitely be transferred or communicated to you, and at the same time I would have received your feedback or acceptance. But since we are at distant places मतलब आप अलग जगह पे हैं, हम अलग जगह पे हैं, एंड हमारी कही गई बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये हम बिल्कुल एकदम से कैसे कह सकते हैं कि एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो एनालाइज नहीं कर सकते हैं. सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे हम ये जज नहीं कर सकते हैं कि मेरी कही गई बात आप तक प्रॉपरली कम्युनिकेट हुई है या फिर नहीं हुई है. सो व्हेनेवर देयर इज सोशल डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टीज, जब यहाँ पे हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज होगी, तो व्हेनेवर देयर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, तो कब ऑफर और कब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगा हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है. ठीक है भाई, आते हैं हम लोग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में. ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे. हम पहले कॉन्सेप्ट नहीं, हम पहले एग्जाम्पल लेके चलेंगे. ठीक है, कह रहे वेयर ए, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, इट सेज दैट वेयर ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस फॉर ₹5 lakh and if the letter containing the offer is posted on 10th March. इसका मतलब हम ये समझते हैं, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ए और बी के पास. ए बी को क्या कर रहे हैं, लेटर भेजना चाह रहे हैं. क्या भेजना चाह रहे हैं, लेटर भेजना चाह रहे हैं. ये जो लेटर है ये ए किसके थ्रू भेज रहे हैं, बाय पोस्ट भेजना चाह रहे हैं. किसके थ्रू भेजना चाह रहे हैं, बाय पोस्ट. और ये लेटर जो है उन्होंने कब पोस्ट किया है, 10th मार्च को किया है. कब किया है, 10th मार्च को किया है. ठीक है, ये देखिए 10th मार्च इसमें लिखा हुआ है. एंड इफ दैट लेटर रीचेस बी ऑन 12th मार्च, ठीक है, ये लेटर जो है वो बी को कब रिसीव हुआ, ही रिसीव्ड इट ऑन 12th of March. ठीक है, तो आप बताइए क्या होना चाहिए. ठीक है, कह रहे ऑफर इज सेट टू बी कम्युनिकेटेड ऑन 12th March व्हेन बी रिसीव द लेटर. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बात क्या है. ए को लगा कि जैसे ही मैंने लेटर पोस्ट कर दिया मेरा ऑफर कम्युनिकेट हो गया. नो, द लॉ सेज जब आपकी रिसीविंग पार्टी जो एक्सेप्टेंस देने वाली है, जब आपकी जो ऑफरी है, जब वो चीज़ एक्चुअली रिसीव करेगी तब हमारा ऑफर कम्युनिकेट माना जाएगा. ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि ऑफर कम्युनिकेट जो है वो कब होता है, कह रहे हैं सबसे पहली बात जब वो पी के पास पहुँच जाए, मतलब ऑफरी के पास. यहाँ पे बी हमारा क्या है, ऑफरी. यहाँ बी क्या है, हमारा ऑफरी. जब ऑफरी के पास रिसीव हो जाए तो हम अज्यूम करेंगे कि हमारा ऑफर कम्युनिकेट हो गया. आई होप इट इज क्लियर. सिर्फ इतने से एग्जाम्पल से, ए है, ठीक है, ये क्या है हमारा ऑफरर और बी हमारी ऑफरी है.
इससे इस डायग्राम से हम एकदम क्लियर बता सकते हैं, ये हमारा ऑफरर है, ये ऑफरी है, और जब ए के थ्रू लेटर जो है बी को दिया गया है और बी ने जिस दिन उसे रिसीव किया है उस दिन हम क्या मानेंगे कि हमारा ऑफर कम्युनिकेट हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज, पक्का। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली में ये क्या कहना चाह रहे थे। ठीक है, देखो अब हम इनके ऊपर कंटेंट पे आते हैं। Communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। वही बात आई, जिस दिन उसको पता चला है उस चीज़ के बारे में, जिस दिन उसको रिसीव हुआ है उस दिन माना जाएगा कि सबसे वो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे वर्ड जो है ना, ये बहुत गहरा वर्ड है, नॉलेज। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो ए ने बी को लेटर भेजा था वो 12 मार्च को बी को रिसीव हुआ था। ठीक है, अब हो सकता है कि 12 मार्च को रिसीव होने पर बी उसको पढ़ ना पाया हो, कुड नॉट रीड, यहाँ पे उसको वो पढ़ नहीं पाया। अगर वो नहीं पढ़ पाया, हो सकता है उसने उसको 14 मार्च को पढ़ा हो सकता है उसने उसको 15 मार्च को पढ़ा हो। लेट अस अज्यूम कि उसने ये लेटर जो है वो कब पढ़ा है, 14 मार्च को पढ़ा है। जब वो एक्चुअली रीड करेगा, जब वो एक्चुअली क्या करेगा, उस लेटर को रीड करेगा, ऑफर इस दिन कम्युनिकेटेड माना जाएगा। दो बातें हैं, पहला लॉ कह रहा है भैया जब ऑफरी के पास रिसीव हो जाएगा, ठीक है, एंड सिर्फ रिसीव होना काफ़ी नहीं है, रिसीव के साथ ऑफरी ने अगर उसे पढ़ भी लिया है, रिसीव्ड एंड रेड, इंपॉर्टेंट बात क्या है, रिसीव्ड एंड रेड, तभी हमारा ऑफर एक्चुअली में क्या माना जाएगा, कम्युनिकेटेड माना जाएगा। क्लियर है बातें, दोनों बातें एकदम क्लियर है। जब हमारा ऑफर रेड एज वेल एज रिसीव्ड होगा तभी हमारा ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। देखो इन्होंने नीचे भी एग्जाम्पल दिया है, he receives the letter on 12th March but he reads it on 15th March। हमारे केस में उसने कब पढ़ा था, 14 मार्च पढ़ा था, इनके केस में 15th मार्च है, तो रिसीव उसको 12 मार्च को हो गया लेकिन उसने पढ़ा उसको कब, 15th मार्च को। इन दिस केस द ऑफर इज कम्युनिकेटेड ऑन 15th मार्च एंड नॉट ऑन 12th मार्च। क्लियर, तो ऑफर हमारा कब कंप्लीट माना जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हमारा ऑफरी उसे रिसीव कर लेगा प्लस उसे रीड कर लेगा उस दिन हमारा ऑफर कम्युनिकेट माना जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एकदम क्लियर है। अब अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की, ए से बी गया ऑफर, अब बी से ए जो आएगा वो क्या होगा, एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट मानी जाएगी, इन्होंने क्या कि यहाँ दो बातें डिस्कस करने की, एक है डिस्कशन वाला, एक अंडरस्टैंडिंग वाला। जब भी हम लोग एक्सेप्टेंस देते हैं तो जनरली जो हमारा ऑफरर है वो हमें एक मोड बताता है कि अगर आप अपनी एक्सेप्टेंस दे ही रहे हैं तो इस पर्टिकुलर मेथड से दीजिए। फॉर एग्जांपल कई ऑफरर चाहते हैं कि आप उनको मेल पे अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए, कई चाहते हैं कि आप व्हाट्सएप पे दे दीजिए, कई चाहते हैं आप टेलीफोन कर दीजिए, कई चाहते हैं आप उनके लिए लेटर पोस्ट कर दीजिए। तो दे आर डिफरेंट मोड्स, इसके थ्रू वो जो है आपसे एक्सेप्टेंस जो है वो मांग सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं कि हम कैसे जो है वो एक्सेप्टेंस दे सकते हैं, या तो कोई काम करके दे सकते हैं या कोई काम ना करके दे सकते हैं। एज डिस्कस्ड अर्लियर, एक्सेप्टेंस इज आइदर टू डू एन एक्ट और नॉट टू डू एन एक्ट। ठीक है, व्हेन आई डू एन एक्ट that's good, when I don't do an act that is known as abstinence or omission, what we say it as abstinence or omission। ठीक है, तो जब हम दो तरीके से एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, वन इज थ्रू एक्ट एंड वन इज थ्रू ओमिशन, और यू कैन से इट एज एब्सटिनेंस। ठीक है, तो यहाँ दो तरीके से हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, एक्ट के थ्रू अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कब मेरी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड मानी जाएगी। ठीक है, देखो अगर इफ़ आई डू एनी पर्टिकुलर एक्ट, इफ़ आई से कि मैं कुछ परफॉर्म कर रही हूँ किसी दूसरी पार्टी के लिए, एक्ट में मैं लिख भी सकती हूँ, तो इट कैन बी एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, वेदर आई राइट इट और इफ़ आई से इट ओरली। अब रिटन वर्ड्स में मेरे पास लेटर्स ऑप्शन है, टेलीग्राम्स ऑप्शन है, फैक्स ऑप्शन है, ईमेल्स ऑप्शन है, एडवर्टीजमेंट्स, ये सब डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो मेरे पास रिटन फॉर्म में अवेलेबल है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ओरल वर्ड्स, तो ओरल वर्ड्स में मेरे पास टेलीफोन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाय आइदर signs, if the other party says Himanshi do you accept this offer, I said yes. This shaking is what, this is my interpersonal communication, that is I'm not writing anything, I'm not speaking anything, only by my expression, only by my signals I am just communicating whatever I meant to say to the other party। ठीक है, एक्सेप्टेंस है, बिल्कुल है ये एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीजें ध्यान में रख रहे हैं,
हम कम्युनिकेशन एक एक्ट के थ्रू दे रहे हैं, वो एक्ट ओरल भी हो सकता है, वो एक्ट रिटन भी हो सकता है, आइदर थ्रू सिग्नेचर्स, आइदर थ्रू साइंस, आइदर थ्रू एक्सप्रेशंस, इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब ये तो एक्ट की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, एक्ट की। द अदर वन इज by omission to do something, ठीक है, other one is omission to do something. If I say, if the other party or the offerer wants me not to do a particular act, and if I, and in return I do not do that particular act, that is communication of acceptance by omission to do something. Okay, clear है चीज। और लास्ट जो आता है हमारा क्या है, communication by conduct, ठीक है। कंडक्ट मतलब क्या होता है, देखो एक्ट मतलब लिख दिया, बोल दिया, साइन दिखा दिए। कंडक्ट मतलब परफॉर्मेंस। व्हेन आई आस्क यू टू पोस्ट मी अ लेटर, दैट पोस्टिंग ऑफ लेटर इज अ कंडक्ट, दैट पोस्टिंग ऑफ लेटर इज अ कंडक्ट। इफ आई आस्क यू प्लीज टेक्स्ट मी, देन टेक्सटिंग इज अ कंडक्ट। इफ आई आस्क यू प्लीज कॉल मी, योर कॉलिंग इज अ कंडक्ट। इट्स एन एक्ट बट फॉलोड बाय कंडक्ट। ओके, क्लियर है चीज, ठीक है। अब इन्होंने देखो क्या किया, एक एग्जाम्पल दिया है, कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस बाय अ सेलर टू अ विलिंग बायर विल बी अंडरस्टूड एज कम्युनिकेशन बाय कंडक्ट टू कन्वे एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर कोई क्या कर रहा है, सेलर आपको गुड्स डिलीवर कर रहा है एक प्राइस के लिए, ठीक है। आप मेरी शॉप पर आए एंड इफ यू से कि आई वांट टू बाय 1 लीटर ऑफ ऑयल, एंड अगर मैं आपको 1 लीटर ऑफ ऑयल का पैकेट लाके दे देती हूँ, दैट मीन्स आई हैव डन माय पार्ट, आई हैव डन माय कंडक्ट, नाउ योर कंडक्ट इज टू पे मी फॉर दैट, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे सिमिलरली वन नीड नॉट एक्सप्लेन वाई वन बोर्ड्स अ पब्लिक। अगर कोई बस चल रही है, उस बस पे मैं बैठ जाती हूँ, दैट इज बट ऑब्वियस कि बस को मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक उतारना है, एंड जब वो मुझे डेस्टिनेशन तक उतार देगी तो उसके बदले में मुझे उसे पे करना है, ठीक है। Similarly, if I, for example, if there is a metro and if I board a metro, if I take a metro, in that case, this but implies if I've taken the metro, I have to pay for it, and metro has to drop me to the destined location, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें सामने वाली पार्टीज को बताना नहीं पड़ता है कि हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, ये हमारे कंडक्ट से विजिबल हो जाता है, हमारे कंडक्ट से समझ आ जाता है कि हम ऐसा काम क्यों करना चाह रहे हैं। we need not explain this particular thing to other parties. I hope it is clear. Okay, now it says that there is another case law mentioned by them, and it says the other issue in communication of acceptance is about the effect of act or omission or conduct. These indirect efforts must result in effectively communicating its acceptance or non-acceptance, ठीक है। अभी इन्होंने देखो क्या बोला, Thus a mere mental, यहाँ पे क्या है, mere mental unilateral assent in one's own mind would not amount to communication. मैं अगर मन में कुछ सोच लूँ कि हाँ मुझे ये सामने वाली पार्टी को देना है, मुझे ये सामने वाली पार्टी को एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करना है, तो मेरे मन में रख लेने से सामने वाली पार्टी तक वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं होगी। व्हाट आई अर्लियर सेड वाज कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी असेंशियल पार्ट, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, जैसे पहला एग्जांपल हमने एक बार ही पढ़ा था कि ए ने बैंक मैनेजर को कहा कि आप एक अग्रीमेंट जो है वो साइन कर दीजिए, बैंक मैनेजर अग्री टू इट, बैंक मैनेजर ने साइन भी कर दिया एंड देन उसने अपने ड्रॉर में रख दिया। उसने ए को नहीं बताया कि उसने उसका लोन अप्रूव कर दिया। क्या ए को पता चलेगा खुद से? नहीं भाई, ए कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो उसको पता चल जाए कि बैंक मैनेजर ने जो है उसका लोन जो है वो अप्रूव कर दिया है। तो इन दिस केस अगर यहाँ पर कोई भी गलत काम होता है, लाइक इफ इट्स नॉट कम्युनिकेटेड इन अ टाइमली मैनर, देखो टाइम भी तो होता है ना, मतलब पता चला आप अपनी ड्रॉअर जो है दिवाली के टाइम पे साफ कर रहे थे एंड देन यू केम टू नो, हो ये तो अग्रीमेंट था, ये तो मुझे ए को डिलीवर करना था, ये तो मैं भूल ही गया देना, एंड देन इफ यू कॉल ए, मिस्टर ए, सी इट्स योर अग्रीमेंट एंड इट्स लेफ्ट इन माय ड्रॉअर, आई एम सॉरी, आई अप्रूव्ड इट बट आई डिड नॉट कम्युनिकेट। तो क्या ये वैलिड है क्या? नो, आई डोंट थिंक सो इट्स वैलिड इनफ। ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है इफ आप बहुत ही डिले कर रहे हैं कम्युनिकेट करने में, ठीक है। तो अगर आपने असेंट दे दी है, यूनिलेटरल मतलब एक पार्टी की असेंट है, माइंड में है, वो कम्युनिकेशन नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप एक्सप्रेसली और आइदर बाय एन एक्ट और बाय कंडक्ट और ओमिशन सामने वाली पार्टी को नहीं बताते हैं दैट यू आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग व्हाट द अदर पार्टी हैज ऑफर्ड टू यू। ओके, क्लियर? ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल वही वाला आ गया, सेंट्रल बैंक वाला जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि हमने लोन अप्रूव कर दिया, हमने उस अग्रीमेंट पे साइन कर दिया, लेकिन हम उसको सामने वाली पार्टी को दैट इज मिस्टर ए को डिलीवर करना जो है वो भूल गए, ठीक है।
मिस्टर ए को डिलीवर करना था, भाई मिस्टर ए को तो तभी पता चलेगा ना उसका लोन अप्रूव हो गया जब एक्चुअली हम उसको पेपर्स देंगे साइन करके। हमने साइन करके पेपर्स दिए नहीं, मन ही मन हमने अज्यूम कर लिया कि अरे मिस्टर ए तो समझ गया होगा कि हमने लोन अप्रूव कर दिया है। दैट इज नॉट द केस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया है, अब इन्होंने इश्यूज को डिस्कस किया है। सबसे पहली बात इन्होंने प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये हमारे क्या है प्रपोजर हैं, और ये हमारे क्या है एक्सेप्टर हैं। ठीक है, ठीक। जब हम बात करते हैं प्रपोजर की तो कह रहे हैं व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर टू विड्रॉ द सेम। ठीक है, देखो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम क्या आती है, इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। अब इनकी कैपेसिटी में बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने एक्सेप्टेंस को वापस ले सके, इनकी कैपेसिटी में बिल्कुल भी नहीं है कि ये अपने एक्सेप्टेंस को क्या कर सके, वापस ले सके। तो यहाँ पे इशू क्या हुआ, कह रहे इशू व्हेन द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट, ठीक, एज अगेंस्ट प्रपोजर। इसके रिस्पेक्ट में कब कंप्लीट हुआ, जब इसने दे दिया और अब ये उसको वापस नहीं ले सकता, इसकी पावर में नहीं है कि वो उसको क्या कर ले, वापस ले ले, तो इसके एंड से कंप्लीट हुआ। दूसरा, अगर हम एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ प्रपोजर, मतलब जब इसकी नॉलेज में आ गया, ठीक भाई, इसके लिए क्या इशू है, उसने उसको भेज दिया, अब वो विड्रॉ नहीं हो सकता। अब एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कब वो कंप्लीट माना जाएगा, जब एक्चुअली ए के पास रिसीव हो जाता है, एक्चुअली ए उसे क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस कंप्लीट मान लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। ओके, तो अभी तक तो ये बातें हो रही थी। अब हम आते हैं कि अगर हम कोई कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसी लेटर से देते हैं, बाय ए लेटर दैट इज सेंट बाय पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के थ्रू देते हैं। पोस्ट में बहुत डिफिकल्टी होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज व्हाट विल एक्चुअली बी द टाइम, व्हाट विल एक्चुअली बी द एग्जैक्ट टाइम व्हेन हम आपको क्या करना हो, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट मानना हो। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बिकॉज व्हेन वी रीड एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड एग्जाम्पल फर्स्ट, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो होता है वो टेक्निकली बहुत क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इफ बी एक्सेप्ट्स एज प्रपोजल एंड सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट ऑन 14th। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ए है, बी है, बी ने कम्युनिकेशन एक्सेप्ट की, मतलब सॉरी इसने एक्सेप्टेंस दी और इसने लेटर पोस्ट कर दिया 14th को, मार्च ही लेके चल रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है, इसने 14th को अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज ए इज कंप्लीट ऑन 14th, क्योंकि अभी हम लोग ने ऊपर जस्ट पढ़ा when it is put on the course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor to withdraw the same। ये वाला पॉइंट, अभी हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा कि कब प्रपोजर की नज़रों में कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का कंप्लीट मान लिया जाता है, जब बी ने पोस्ट कर दिया और बी की पावर से बियॉन्ड हो गया कि बी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट है, जब बी ने उसको निकाल दिया और बी उसके साथ अब कुछ नहीं कर सकता, when the letter is posted। ठीक है, एज अगेंस्ट बी, अगर हम बी की बात करें तो बी के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, जब एक्चुअली ए की नॉलेज में आ जाएगी, मतलब जिस दिन ए रिसीव कर लेगा, ए जिस दिन पढ़ लेगा उस चीज़ को, उस दिन बी के लिए वो एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी। ठीक है, हेयर नाउ व्हाट द पॉइंट इज, हेयर ए द प्रपोजर विल बी बाइंड बाय बीज एक्सेप्टेंस, क्योंकि बी ने तो निकाल दिया है। Even if the letter of acceptance is delayed in post or lost in transit, अगर कोई जो लेटर है जो बी ने डिस्पैच कर दिया है, अगर वो खो जाता है रास्ते में या डिले होता है, तो ए की नज़रों से तो वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है ना, अभी बी की नज़रों से वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि बी की नज़रों से तब कंप्लीट होता है जब ए एक्चुअली उसकी नॉलेज में आ जाता है, जब वो एक्चुअली रिसीव एंड रीड कर लेता है, तब उसके लिए वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है। लेकिन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बी तो उसे डिस्पैच कर चुका है। क्लियर, तो ये गोल्डन रूल क्या है यहाँ पे, इज द प्रपोजर बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट moment acceptor has posted the letter। समझ गए, बट इट इज नेसेसरी दैट द लेटर इज करेक्टली एड्रेस। लेकिन अगर बी उसमें कुछ गड़बड़ कर देता है, एड्रेस गलत डाल देता है, स्टैंप नहीं लगाता है, सही से पोस्ट नहीं करता है, तो गलती बी की है, ए की नहीं है, तो ए बाउंड नहीं रहेगा उस केस में। इन सच एन इवेंट अगर लॉस ऑफ लेटर होता है, कोई रॉन्ग डिलीवरी होती है, कोई नॉन डिलीवरी होती है, इट विल नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है चीज़। तो
तो इस बात से हमें एकदम क्लियर हो गया, अगर हम भी अभी किसकी बात कर रहे थे, ऑफर की। ऑफर एक्सेप्ट कब माना जाता है, जब अदर पार्टी जो है मतलब जो ऑफरी उसको रिसीव एंड रीड कर लेती है, ठीक है। अगर हम बात करें एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन, ठीक है। पहले हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जो मेरा ऑफरर है, और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जो मेरा ऑफरी है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट है, व्हेन बी पोस्टेड लेटर, जब बी ने लेटर पोस्ट कर दिया, ठीक है। बी के पॉइंट ऑफ व्यू से कब है, व्हेन ए रिसीव्स एंड रीड। बात समझ आई, क्लियर है। जब बी ने लेटर पोस्ट कर दिया उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस कंप्लीट, बी की तरफ से ए की तरफ से कंप्लीट, और बी की तरफ से कब कंप्लीट होगा, जब ए उसे रिसीव कर लेगा और उसे रीड कर लेगा। आई होप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ आ गए। ऑफर कब कम्युनिकेट माना जाता है, एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट माना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़, ओके भाई। अब आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस। कुछ कंडीशंस है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट द स्पेशल कंडीशंस आर। It says that sometimes there are situations when there are contracts with special conditions. These special conditions are conveyed tacitly, and the acceptance of these conditions are also conveyed by the offerer, again tacitly or without even him realizing about it. ठीक है, जैसे if passenger undertakes a travel, the conditions of travel जो है, ठीक है, हम जब रेलवे के टिकट्स खरीदते हैं या कोई एयर टिकट्स खरीदते हैं, क्या हम लोग को इतना कंसर्न होता है कि हम पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े उसके? नहीं। जब हम कोई पैकेट खरीदते हैं, कोई फूड पैकेट ही खरीदते हैं, तो उसके पीछे जो होते हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। डू वी केयर अबाउट टू रीड अबाउट कि वो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या लिखे हैं? नहीं, हम पढ़ते भी नहीं हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस को। एंड बाद में अगर कोई दिक्कत होती है देन हम उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसको पूरा समझेंगे, देन उसके लिए कंप्लेन फाइल करेंगे, सब चीज़ें करने के लिए हम रेडी होते हैं। लेकिन जब इनिशियली वो चीज़ हमें ऑफर की गई होती है उस टाइम पे वी आर केयर फ्री ऑफ रीडिंग ऑल दोज थिंग्स, हम उस चीज़ को पढ़ना भी नहीं चाहते। तो उन्हीं स्पेशल कंडीशंस की बात जो है वो यहाँ पर हो रही है कि कभी कभी क्या होता है, जब हम रेल टिकट्स खरीदते हैं, हम एयर टिकट्स खरीदते हैं, तो उनके पीछे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इम्प्रिंटेड होती हैं जिनको हम पढ़ने के लिए रिलक्टेंट होते हैं, हम नहीं पढ़ना चाहते, हम पढ़ते ही नहीं हैं। हमें लगता है ये सब फालतू की चीज़ें, क्या मतलब होता है, पैसेंजर नाम देख लिया, डेट ऑफ जर्नी देख ली, टाइम देख लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। बाकी इसके अलावा हम लोग वी आर नॉट पर्टिकुलर कि हम चेक करें ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इन्होंने देखो क्या कहा, कह रहे व्हेन समवन ट्रैवल्स from one place to another by air, it could be seen that special conditions are printed at the back of the air ticket in small letters, ठीक है, ये तुमको पता ही है। Sometimes these conditions are found to be displayed at the notice board of the airline office, जो एयरलाइन ऑफिस का नोटिस बोर्ड होता है उसके यहाँ पे भी कभी कभी छपी होती है, लेकिन नॉट ऑब्वियस, ठीक है, मैंने तो नहीं देखी कभी, ठीक है। जनरली टिकट्स के पीछे ही प्रिंट करते हैं, उनके जो ऑफिसेज होते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं, उनमें तो कहीं पर भी नहीं लिखा होता है, ठीक है। Which passengers may not have cared to read. The question here is, ये जो conditions हैं क्या ये communicate मानी जाएंगी to the passengers of airlines, and can the passengers be treated as having accepted these conditions? तो answer to the question is in the affirmative. मतलब once these conditions are printed on your air ticket, now even if you read it or not, you are bound by it. It is deemed कि you have accepted to the offers, to the terms, to the conditions that are laid down by the airlines. ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इन्होंने एक और केस दिया है, कह रहे yet another cases where a launderer gives his customer a receipt for the cloth received for washing. The receipt carries special condition, उसमें special conditions लिखी हैं जो मानी जाएंगी। They are being duly communicated to the customer and there in a tacit acceptance. Tacit मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, इट इज़ जस्ट प्रिंटेड एंड इट इज़ अज्यूम्ड कि आप इन सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप इन सब चीज़ों को समझ रहे हैं। यू आर बाउंड बाय ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस आफ्टर रीडिंग ऑल दोज थिंग्स, ठीक है, क्लियर हो गई चीज़, ठीक। अब इन्होंने एक और केस दिया हुआ है यहाँ पे वर्सेस मानुस्वामी का, ठीक है। दिस आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग बट बिकॉज इट विल अगैन जस्ट डू द सेम थिंग कि there are special conditions which are when printed is assumed that the customer or the person who is the recipient of it
is bound by the terms and condition even if it has read it or not. ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? कह रहे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, इट मे बी एनफोर्स्ड ऑन अनदर हु इज सब्जेक्टिवली अनअवेयर ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. कभी कभी उनके ऊपर भी इम्पोज करा दिए जाते हैं जो इसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड द पार्टी वांटिंग टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट हैज गिवन अ नोटिस. मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट में उन्होंने कभी इस चीज़ का नोटिस दिया होगा कि हाँ हम इन चीज़ों के साथ या हम इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एंटर करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसी सिचुएशंस एग्जिस्ट नहीं करती थी तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया गया. ठीक है, अब के टाइम पे क्या होता है, इन सच अ केस सिंस द स्पेशल कंडीशंस वर नॉट कम्युनिकेटेड प्रायर टू द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आपका मन किया, कभी भी आपने बाद में बोल दिया कि नहीं नहीं अब तो करेंगे, उसी टाइम तो आपने कम्युनिकेट किया नहीं, तो दीज वर नॉट बाइंडिंग ऑन द ओनर ऑफ द गुड्स. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि यहाँ पर दो पार्टीज हैं एक्स और वाई. ठीक है, अब एक्स जो है उसने आपसे कहा कि भैया मुझे ये फलाना टिकट आपसे चाहिए है. ठीक है, आपने कहा कि भाई आज तो नहीं है, तुम लेटर स्टेज पे ले लेना. इसने कहा ठीक है. अब लेटर स्टेज में जब आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो तो आप पहले से इसको क्या करोगे, इंटीमेट करोगे, पहले से आप इसको क्या करोगे, इन्फॉर्म करोगे कि हाँ भाई मैं ये चीज़ तुम्हें देना चाह रही हूँ. आपने बिना इन्फॉर्म करे एक्स को अगर वो चीज़ प्रोवाइड कर दी, देन एक्स इन दैट केस इज नॉट बाउंड कि वो आपकी चीज़ को समझे. क्यों? क्योंकि आपने उसको पहले से नहीं बताया ना. जब वो विलिंग था, अगर उस केस में अगर आप कोई चीज़ बोलते तब तो समझ आता. सिंस अभी वो विलिंग नहीं था और आपने उसको बिना बताए जो है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा लिया, उसको इन्फोर्स करा लिया, तो इस केस में एक्स जो है वो लायबल नहीं है. ठीक है, ये जो केस था ये कौन सा था, फेमस रायपुर ट्रांसपोर्ट वर्सेस घनश्याम का. ओके, क्लियर है ये चीज? पक्का? ओके, नाउ अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. अब हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ेंगे. हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट था, वैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस भी इंपॉर्टेंट है. आई होप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन आपको समझ आ गया. ठीक है, हम बात करते हैं अब कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस की. तो इसमें भी हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. एक तो प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा यहाँ पर क्या है, ऑफरर है. ठीक है, और दूसरा एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं, ऑफरी बुलाते हैं. ठीक है, क्लियर है? सबसे पहली बात हम प्रपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं. वही हमारे पुराने दोस्त यार जो कॉन्ट्रैक्ट में चले आ रहे हैं, ए और बी. तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले बात करते हैं. कह रहे हैं व्हेन द एक्सेप्टेंस इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन. ये तो हम बता ही चुके हैं. बी ने अगर लेटर पोस्ट कर दिया तो ए की तरफ से एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है. बी की तरफ से एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगी, जब ए उसको एक्चुअली रिसीव एंड रीड कर लेगा. सेम चीज़ यहीं पे दी हुई है. ठीक है, इन्होंने केस दिया हुआ है नीचे, कैरल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी. ये केस हम लोग पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं. दिस केस जो है ये ऑलरेडी हम लोग पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने कहा था आप जो है मेरी मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं हो सकता, और अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो वो रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है. वेरी गुड. मिसेस कैरल जो है उसने इनकी मेडिसिन कंज्यूम करी, उसके बाद भी इनको इन्फ्लुएंजा हो गया. तो इस केस में कैरल वॉज एलिजिबल टू रिसीव द रिवॉर्ड फ्रॉम कैरल एंड स्मोक बॉल कंपनी. ठीक है, वो केस ये था. सेम केस देखो यहाँ पे इन्होंने फिर बताया, कह रहे हैं इन दिस केस अ डिफेंडेंट अ सोल प्रोप्राइटरी मैन्युफैक्चरिंग अ मेडिसिन which was a carbolic ball. ठीक है, whose smoke could be inhaled through the nose to cure influenza. उसकी जो स्मोक थी वो इनहेल करके इन्फ्लुएंजा क्योर हो सकता था. कोल्ड, अदर कनेक्टेड जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब हो सकते थे. एडवर्टीजमेंट था कि इसको कंज्यूम करने के बाद अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसको $100 का रिवॉर्ड मिलेगा. ठीक है, अब मिसेस कैरल ने क्या किया, इनकी मेडिसिन कंज्यूम करी और उसके बाद भी उनको क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया. तो इसके लिए क्या है कि यहाँ क्या कार्बोलिक कंपनी लायबल है? डेफिनेटली लायबल है भाई. वो क्लेम कर रहे थे कि किसी को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा हमारी मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद, लेकिन मिसेस कैरल को तो हो गया. तो नाउ मिसेस कैरल इज एलिजिबल फॉर द रिवॉर्ड ऑफ $100. ठीक है, अब फर्दर देखो क्या कह रहा है. Further, as the advertisement did not require any communication of compliance of condition, it was not necessary to communicate the same. तो कोर्ट ने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को लिस्ट डाउन किया है. पहली बात उन्होंने क्या बोला है, कह रहे ऑफर टू बी केपेबल ऑफ एक्सेप्टेंस
must contain a definite promise by the offerer. यहाँ कार्बोलिक कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि अगर किसी को कुछ भी हो जाता है हमारी मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसको $100 का रिवॉर्ड देंगे. तो डेफिनेट प्रॉमिस था बाय द ऑफरर, था भाई डेफिनेट प्रॉमिस था. फिर उसके बाद ऑफर मे बी मेड आइदर टू द पर्टिकुलर पर्सन और पब्लिक एट लार्ज. हमारे केस में किसको मिला, पब्लिक एट लार्ज को. ठीक है. दूसरी चीज, if the offer is made in the form of promise in return for an act या performance of the act, even without any communication thereof, it is treated to be acceptance of offer. हमने particularly नहीं कहा था मिसेस कैरल को कि आप करिए, लेकिन मिसेस कैरल ने एक्ट परफॉर्म किया. शी कंज्यूम्ड द मेडिसिन एंड देन शी कॉन्ट्रैक्टेड इन्फ्लुएंजा. इस केस में नेसेसरली कंपनी ने मिसेस कैरल को कम्युनिकेट नहीं किया. इट इज अ जनरल कम्युनिकेशन जो कंपनी ने क्या किया था, पब्लिक को दिया था, which has been accepted by Mrs. Carroll and then later on she claimed the reward. I hope it is clear to all of you. तो ये तीन बातें हैं. पहली तो definite promise, दूसरा किसी को भी हो सकता है either to the particular person or public at large. तीसरा इसके लिए communication specific ज़रूरी नहीं है. Once you have declared the offer in public, it will be deemed कि अगर कोई भी पार्टी उसके बदले में कोई एक्ट करती है तो इसका मतलब उसने आपके ऑफर को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है. क्लियर है ये चीज़, पक्का. तो हम लोग ने आज दो बातें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी पढ़ी हैं. एक तो हमने पढ़ा है एक्सेप्टेंस, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और दूसरा हमने पढ़ा है कि परफॉर्मेंस के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, किसके लिए, कम्युनिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा है. ठीक. और अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कि कब हम वापस ले सकते हैं. क्या हम अपने ऑफर और एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हैं? जी बिल्कुल, हम अपने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को वापस ले सकते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, वही हमारा कौन है यहाँ पर, ऑफरर. अगर हम ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, सो बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट. ठीक है भाई. कब हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने बोल दिया और अब वो हमारे रीच के बियॉन्ड है, तो हमारी तरफ से कंप्लीट है. एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, हमारी पावर से निकल गया, हमारी तरफ से कंप्लीट है. जब उसको मिलेगा वो एक्सेप्ट करेगा, वो उसके नॉलेज में आ जाएगा, उसने रिसीव और रीड कर लियागा, तो उसकी तरफ से भी कंप्लीट मान लिया जाएगा. ठीक है. इन्होंने यहाँ पे कुछ केस लॉज दिए हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं. कह रहे द बिडर at the auction sale may withdraw या revoke his bid before it is accepted by auctioneer by the fall of hammer. भाई आपने बिडिंग करी, जैसे आपने बोला 10 लाख रुपए, अब 10 लाख की और कोई बिड नहीं आई, तो जो वहाँ पे ऑक्शनियर है वो हैमर देने ही जा रहा था, जब आपने कहा नो 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 आई डोंट वांट, मैं अपने 10 लाख की बिड को विड्रॉ कर रहा हूँ, तो मतलब उसके हैमर फॉल करने से पहले ही आपने कंप्लीट बोल दिया कि नहीं, यू डोंट वांट कि आपका जो ऑफर है वो क्या हो जाए, कंप्लीट, आपकी जो ऑफर जो आप देने जा रहे थे वो कंप्लीट हो जाए. तो दैट मीन्स डूइंग एन एक्ट जिसकी वजह से आपका ऑफर कंप्लीट हो जाता, अब आपने उसको क्या कर लिया, रिवोक कर लिया, सो दैट द अदर पार्टी एंड नाइदर यू आर बाउंड बाय एनीथिंग. ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज. नेक्स्ट देखो, एक्स ऑफर टू सेल 50 bales of cotton at a certain price and promised to keep it open for acceptance by Y till 6 PM of that day. ठीक है, कि उसने कहा मैं 50 bales दूंगा, 6 बजे तक ये ऑफर खुला है. बिफोर दैट टाइम एक्स सोल्ड टू जेड, एक्स ने क्या किया, उसको जेड को सेल कर दिया, और वाई ने क्या कर दिया, बिफोर 6 PM एक्सेप्ट तो किया, लेकिन जेड को तो ऑलरेडी सेल हो चुका था ना, तो इसका मतलब वंस इट इज सोल्ड टू जेड, अब आपके लिए तो वो रिवोक हो गया ना, तो अब आपका एक्सेप्टेंस मायने ही नहीं रखता. ठीक है, क्लियर है. इसमें ऑफर क्या है, ऑलरेडी रिवोक्ड. क्लियर है चीज. ठीक है. अब यहाँ पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पोस्ट के थ्रू हुआ है, उस केस में कैसे कंप्लीट माना जाएगा. कह रहे एज एक्सेप्टेंस इन इंग्लिश लॉ cannot be revoked so that once the letter of acceptance is properly posted the contract is concluded. उसने पोस्ट कर दिया, बात खत्म. लेकिन इंडियन लॉ अलग चल रहा है. The acceptor can revoke his acceptance any time before the letter of acceptance reaches the offerer. मतलब B ने अपना लेटर पोस्ट तो कर दिया, लेकिन A को अभी मिला नहीं है, तो जब तक A को नहीं मिलेगा उससे पहले बी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे क्या कर सकता है, रिवोक या फिर वापस ले सकता है. क्लियर हो गई चीज. वेरी गुड. अब नेक्स्ट टाइम देखो क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ओवर फोन. अगर फोन पे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस केस में क्या होगा,
कह रहे कॉन्ट्रैक्ट कैन बी मेड ओवर फोन, द रूल्स रिगार्डिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर भी अगर जब तक आपके मुंह से एक्सेप्टेंस नहीं निकली है उससे पहले, मतलब सामने वाली पार्टी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आई है उससे पहले अगर आप कभी भी चाहें तो आप अपने ऑफर को क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो अभी तक हमने जो बातें पढ़ी, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ तक बचा है एंड इसके लिए हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं, बट सिंस इट्स स्मॉल लेट्स डिस्कस इट राइट नाउ ओनली। ओके, नाउ इट इज रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल अदरवाइज दैन बाय कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेट नहीं हुआ तब क्या करेंगे, कह रहे व्हेन द प्रपोजल इज मेड द प्रपोजर मे नॉट वेट डेफिनेटली फॉर हिज एक्सेप्टेंस, द ऑफर कैन बी रिवोक्ड अदरवाइज दैन बाय कम्युनिकेशन और समटाइम्स बाय लैप्स। हमने एक टाइम स्पेसिफाई किया, इतने टाइम तक आप अपना कंफर्मेशन दीजिएगा, इतने टाइम तक आपका कंफर्मेशन नहीं आया, इट विल बी डीम्ड कि वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब बात आती है मोड ऑफ रिवोकेशन की, कैसे कर सकते हो भाई। आप एक नोटिस पोस्ट कर दो कि भाई जो भी मैंने ऑफर दिया था, आई एम नॉट विलिंग टू सेल यू फर्दर या आई एम नॉट विलिंग टू ऑफर यू फर्दर, तो नोटिस ऑफ रिवोकेशन दे दिया आपने, एक्सेप्टेंस से पहले आपका ऑफर रिवोक हो गया। या आपने कोई टाइम स्पेसिफाई किया था, वो टाइम लैप्स कर गया, आपका ऑटोमेटिकली ऑफर क्या कर जाएगा, लैप्स कर जाएगा। या कोई कंडीशन ऐसी थी जो आपके एक्सेप्टर को फुलफिल करनी थी, ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले उसने वो कंडीशन फुलफिल नहीं करी, उसने वो कंडीशन मानी नहीं या उसने वो कंडीशन करी नहीं, तो इस केस में आपका ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। या आप ऑफरर ऑफरी किसी के भी डेथ इंसेंटी हो जाए, या सामने से आपका एक्सेप्टर कोई काउंटर ऑफर दे दे। काउंटर ऑफर मतलब हमने ऑफर दिया, हमारे ऑफर को कैंसिल करके उसने फर्दर दे दिया, इसका मतलब कि योर ऑफर इज नॉट मोर इन एग्जिस्टेंस, तो आप कभी भी उसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, या कोई इलीगैलिटी हो गई, ठीक है, या जिस मोड से आपने कहा था उस मोड से आपकी एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो इन किसी भी केसेस पे आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑफर्स को रिवोक कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। Here comes an end to our chapter Indian Contract Act. I hope you all enjoyed it a lot. I hope you all understood a lot. And if you'll have very query, we'll just have one discussion class over it, and you can clear out your queries. And okay, so we'll take a leave here, and we'll come back with our next chapter of company law. So here comes an end to Indian Contract Act. Okay, bye students.